Hello students. Yesterday we have talked about coherent and incoherent sources, and today I am going to teach you about interference. So basically हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटरफेरेंस अगर हम कब पाएंगे, जब हमारे पास क्या हो, कोहेरेंट सोर्सेज हो. बिकॉज मैंने आपको एक टर्म बताया था, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट. कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट में आफ्टर सुपरपोजिशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी थी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I12. In this equation, first term is individual intensity of light of source 1. I2 is intensity of light of source 2, and I12 is interfering term which arises due to superposition of the waves. So अगर आपके पास इनकोहेरेंट सोर्स है, मीन्स ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ, या फिर फेज इक्वल नहीं है, इन दैट केस I12 will be 0. I've already shown you I12 will be 0, means there will be no interfering term, there will be no interference, simply the resultant intensity will be the sum of intensities of individual sources. But if the sources are coherent, then definitely we will get some value of I12, means we have some interfering term after superposition. So this phenomena we call interference. And what will be resultant intensity due to this value? If suppose that if I12 is positive, I12 is positive such that I becomes maximum, then definitely we will get some maximum intensity. And if I12 is 0 or I12 is negative, think not 0, I12 is negative, then definitely we will get minimum intensity for the resultant wave. So there is a distribution of maximum and minimum intensity depending upon the factor I12, which also depends on the factor cos phi1 minus phi2. You know what's the value of I12? Value of I12 is Ka1A2 cos phi1 minus phi2. So if phi1 minus phi2 means difference of phase will change, then accordingly interfering term will change, and if interfering term will change, then definitely resultant intensity will be changed, because these two are constant. So only to change the resultant intensity we have one term, which is interfering term, and interfering term depends on the factor cos phi1 minus phi2, means if the phase difference between the waves will change, then definitely interfering terms will be changed. So what is interference, means इतने डिस्कशन के बाद हम एक कंक्लूजन पर आते हैं कि if the sources are coherent, their frequencies are same. If two or more lights, for convenience I am taking only two sources. So if there is a there is pair of source, then and those two sources are coherent source, then definitely their frequency will be same, their wavelength will be same, their amplitude must be nearly same. Then after superposition we will get a new wave in which there is redistribution of maxima and minima, means there will be the distribution of maximum intensity and minimum intensity. What actually means, what is its mean? Means there are some points at which intensity will be maximum, at some point intensity will be minimum, maximum minimum, maximum minimum, means there will be at some places there will be bright light, more bright light, and at some places there will be dark, again bright light, again dark. Then in this way we will get an strip, bright dark strips, and हम इसी स्ट्रिप्स को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं या इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं.
means for the interference pattern we must have some conditions. Sources must follow some conditions. So what will be the conditions, I'll definitely explain you later. But here, what is interference? Then interference is nothing but redistribution of intensities according to the phase difference between the wave sources. Means if anywhere the distribution of intensity is maximum and minimum, then definitely they are interfering. They are after superposition they will give some interference pattern. Clear? There are two types of interference depending upon whether we are getting maximum intensity or we are getting minimum intensity. So if at any point we get maximum intensity, then interference will called constructive interference. Constructive interference. And if we get minimum intensity, we can also get zero intensity, that is the most minimum intensity. But if we get minimum intensity, then the interference will be called destructive interference. Destructive interference. Actually, interference terms means nothing but only there is some interruption after the mix up of wave, after superposition of wave, after interference of wave. So that interference term, that mix up term gives us some new concept, new I think effect. So that's why we call it interference. And that is what in normal light, if they are in incoherent sources, like कि हमारे पास क्या है कि सन से लाइट आ रही है, या फिर हम बहुत सारे लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं, एलईडी यूज कर रहे हैं, ट्यूबलाइट्स यूज कर रहे हैं, टॉर्च यूज कर रहे हैं, देन नेचुरली हम क्या करते हैं, हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता, हमें मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता. बट अगर हम क्या करें कि उन सारे सोर्सेज को कोहेरेंट बना दें, मीन्स नेचुरली ऑल दिस सोर्सेज आर इनकोहेरेंट. और ऑब्वियसली आई हैव शोन यू कि अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट है देन इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होगा, देयर विल बी नो चेंज आफ्टर सुपरपोजिशन. सो दैट्स व्हाई in natural way we are not getting any interference pattern, any maximum minimum intensity. अगर ऐसा हो जाता then definitely in our world at some point there will be some bright light, at some point there will be dark. So it's not like that. So everywhere we are getting same light. Say means if I am going somewhere, then definitely I am getting same light as I am getting here. Okay, so if the sources are coherent, first condition and very important condition for interference, sources must be coherent. Without coherence we can't get interference, because we will not get any interfering term, we will not get any distribution of intensity, means intensity will not vary then. So there must be variation of intensity, and if there is variation of intensity, then definitely there will be interference. So if we are getting maximum intensity, then interference will be constructive interference. If we are getting minimum intensity, then there will be destructive interference. So according to which what is the condition for sustainable interference? Sustainable means well defined, bright, sharp fringes. जैसे अगर हमें वेल डिफाइंड ब्राइट फ्रिंजेज पानी है, आप फ्रिंजेज जिनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप या स्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, देन दैट टाइप्स ऑफ फ्रिंजेज और दैट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस विल कॉल्ड सस्टेनेबल इंटरफेरेंस. So what are the conditions for getting such types of interference? So first condition is sources must be coherent. Sources must be coherent. कब? I think मैं आपको कल से बता रही हूँ
कि अगर आपको इंटरफेरेंस पाना है देन डेफिनेटली सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. विदाउट कोहेरेंट सोर्सेज वी कांट गेट एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी. We will not get any variation in intensity. So the first thing which is important for interference is coherent sources. मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि कैसे हम कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नेचुरली कोई भी लेजर एक्सेप्ट लेजर ऑल सोर्सेज आर इनकोहेरेंट. सो लेजर मुझे यहाँ नहीं बताना है, बट आई विल एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट लेजर के लिए जरूर दूंगी कि लेजर नेचुरली कोहेरेंट क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी बट आफ्टर क्लास. ओके. सो फर्स्ट कंडीशन इज देयर सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज. सेकेंड, the amplitude of light waves must be same, frequency must be same, wavelength must be same. If these three quantities are same, then definitely we will get interference and we will get actually मैंने आपको फिर से मैं इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट एडिशन के टॉपिक पे जा रही हूँ. वहां पे भी हमने क्या किया था कि W1 इक्वल टू 2 किया था, मीन्स ओमेगा बोलना चाहे, ठीक है. मीन्स फ्रीक्वेंसीज को हमने क्या किया था, सेम किया था, ठीक. सो इफ देयर विल बी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है देन हमारा टर्म्स क्या होगा, सिर्फ फेज डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा. तो डेफिनेटली फॉर द कोहेरेंट सोर्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम. सेकेंड कंडीशन इज दैट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड wavelength must be same to get more sharp, more bright and more clear fringes. Third, light should be monochromatic. Light should be monochromatic. So what is monochromatic light? Mono word means one, means ऐसी लाइट जिसका वेवलेंथ 1 हो. 1 मीन्स नॉट द नंबर, नॉट अमाउंट. मीन्स लाइट की वी हैव व्हाइट लाइट एंड व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर्स का मिक्सअप है एंड देयर इज अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड ऑफ वेवलेंथ, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम एंड ends to 700 एंगस्ट्रॉम. मीन्स देयर इज अ वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ. They are not precise, they are not definite. There is a band of the frequency and wavelength. So band मैं आपको नहीं बता रही हूँ फिलहाल अभी, बट अगर क्या है कि किसी भी लाइट के पास मान लीजिए कि सिर्फ 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट है. So this is the monochromatic light because that light has only one wavelength. But in white light there are so many wavelengths. 4000 to 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच कोई भी वेवलेंथ क्या हो सकती है, अकर कर सकती है इन व्हाइट लाइट. सो डेफिनेटली व्हाइट लाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, दिस इज पॉलीक्रोमैटिक. बट इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम लाइट, actually sodium light is also not monochromatic, but we can say this one is nearly monochromatic. In sodium light there is 2 wavelength. First is (5890 angstrom and 5896 angstrom. So we have 2 wavelength in sodium light. Actually ये दोनों वेवलेंथ क्या होती है, येलो लाइट को फॉर्म करती हैं. सो डेफिनेटली अगर आप इसका एवरेज ले लें, और देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन these 2 lights. 6 angstrom is very small difference. So we can call sodium light is monochromatic light, nearly monochromatic light. So for the experiment we take this light. So coherent sources must be monochromatic. क्यों monochromatic होना चाहिए? Firstly हम polychromatic light ले लें तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी. So monochromatic
रीजन ये है कि अगर आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट लेंगे देन डेफिनेटली फॉर एवरी वेवलेंथ वी विल गेट देयर ओन फ्रिंजेज। मीन्स सारे वेवलेंथ के लिए लाइट के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट सेंड करेंगे, और सेकेंडरी वेव फ्रंट सेंड करेंगे तो सभी आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। एंड डेफिनेटली आफ्टर ओवरलैपिंग वी विल गेट constant illumination, not any variation in maximum minimum intensity. So अगर हमें या फिर अगर आपको फ्रिंजेज मिलेगा भी देन फ्रिंजेज विल बी diffuse type, not sharp. So if we want to get sustainable interference, sharp fringes, then definitely we have to use monochromatic light, because in monochromatic light there is only one wavelength, then definitely they will send secondary wave front, only one secondary wave front depending on the source or point. Then definitely after interference there will be sharp fringes. Means बहुत सारे वेवलेंथ्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी, सो डिफ्यूज टाइप के आपको फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। अगर बहुत डिफ्यूज फ्रिंजेस हैं देन डेफिनेटली आपको क्या होगा, व्हाइट इल्यूमिनेशन मिलेगा, जैसे नॉर्मल आपका सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। So the light sources must be monochromatic. The third condition is, or next condition is, light sources must be narrow. If the sources will be narrow, then the light will be more short, more directional. And if the light is directional, then definitely we will get sharp fringes. Next condition, the source separation must be as small as possible. Means पहले था कि हमें क्या है, एक पेयर ऑफ सोर्स यूज कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग स्लिट्स, पेयर ऑफ सोर्स यूज कर रहे हैं, देन द सेपरेशन बिटवीन पेयर ऑफ सोर्सेज मस्ट बी स्मॉल, बिकॉज इफ वी विल नॉट टेक ए स्मॉल सेपरेशन देन डेफिनेटली फॉर इंटरफेरेंस वेव्स मस्ट हैव टू ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस तक वेव ट्रेवल करेगी, देन इंटेंसिटी क्या होगी, फेडेड होगी। एंड आफ्टर दैट इंटरफेरेंस पैटर्न हमें क्या मिलेंगे, डिफ्यूज मिलेंगे, शार्प नहीं मिलेंगे। लास्ट कंडीशन, वन मोर कंडीशन इज स्क्रीन एंड सोर्स के बीच की डिस्टेंस, जहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, डार्क ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेज मिलेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। बिकॉज अगर लार्ज डिस्टेंस है देन वी इंटरफेरेंस, अगर आप क्या कर रहे हैं, इस रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है, देन डेफिनेटली अगर स्क्रीन उससे पीछे है तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इंटरफेरेंस पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बिकॉज वी नो दैट लाइट सोर्सेस वेव फ्रंट्स जनरेट करती हैं, कंटिन्यूली वेव फ्रंट्स जनरेट करती हैं। सो सभी वेव फ्रंट्स आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, सुपरपोज करेंगे। सो दे विल नीड सम स्पेस फॉर दैट, and definitely after superposition, sufficient superposition, they will give us bright and sharp fringes. So that's why there must be distance between screen and source. So these are the conditions to obtain interference pattern. Now the first actually thing हमारे दिमाग में है कि सबसे पहली कंडीशन, कोहेरेंट सोर्सेज हम कैसे बनाएंगे। नेचुरली सारे लाइट्स इनकोहेरेंट है एक्सेप्ट लेजर, देन हाउ कैन वी गेट कोहेरेंट सोर्सेज। एक्चुअली लेजर काफी लेट डिस्कवर्ड हुआ है, सो दैट्स वाई 1969 में फर्स्ट लेजर बना था। सो बिफोर दैट हमारे पास कोई लेजर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इस तरीके की लाइट जो नेचुरली कोहेरेंट होती है। सो वी हैव ऑलरेडी व्हाइट लाइट एंड अदर लाइट्स, सो वी ट्राई टू मेक कोहेरेंट सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज। सो कैसे हम कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे, इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि हम क्या करें, एक सोर्स की लाइट को दो सोर्स में डिवाइड कर दें, मीन्स डिवीजन कर दे इन सिंपल वे। के पास क्या है, एक कॉमन सोर्स है, ये इनकोहेरेंट सोर्स है, इसकी लाइट्स को हम क्या करें, अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी एक सोर्स से हम दो सोर्स प्रोड्यूस करें। दीज टू सोर्सेज कैन बी रियल, एक वर्चुअल हो सकता है, एक रियल, या फिर दोनों सोर्सेज वर्चुअल हो सकते हैं। ठीक, आप वर्चुअल सोर्सेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं,
बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं वर्चुअल सोर्सेज के, प्रणल बाई प्रिज्म एंड अदर्स, बट नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू कि कितने टाइप्स के आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंटरफेरेंस पाने के लिए और वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, मीन्स कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए उनको क्या प्रिंसिपल चाहिए। तो बेसिकली कीप दैट इन माइंड कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि अगर हम कोहेरेंट सोर्सेज पाना चाहते हैं तो हमें एक सोर्स को दो सोर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, हम दो अलग अलग सोर्सेज क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज अगर हम दो अलग अलग सोर्सेज लेंगे तो टाइम के साथ उनकी इंटेंसिटी या फेज में चेंजेज होते रहेंगे। सो वी विल नॉट फॉर लॉन्गर टाइम हम क्या करेंगे, उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं पाएंगे। सो अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है देन वी विल नॉट गेट इंटरफेरेंस फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंटरफेरेंस मिलेगा जब तक फेज डिफरेंस बना रहेगा, बट जैसे ही फेज डिफरेंस रहेगा देन डेफिनेटली हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सो हमारी स्टडी ब्लॉक करेगी, हम बाकी जितने भी उसके एप्लीकेशन है हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो फॉर द लॉन्गर इंटरफेरेंस पैटर्न, मीन्स आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू डू वन थिंग, बिकॉज दीज टू सोर्सेज आर जनरेटेड फ्रॉम वन सोर्स। सो अगर प्राइमरी सोर्स में किसी भी टाइप का चेंज होता है देन डेफिनेटली डॉटर सोर्स में अपने आप क्या होगा, सेम चेंज होगा। और अगर डॉटर सोर्सेज में सेम चेंज होगा देन डेफिनेटली इनका फेज हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा थ्रू ओवर द टाइम। सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज, फेज रिलेशन बिटवीन दीज, and definitely they are in the same phase, they are at the same point at the same they are at the same time and their frequencies are also same. So जितनी भी कंडीशंस आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज की है वो डिवीजन से अपने आप क्या होती हैं, फुलफिल हो जाती हैं। सो द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस, बेस्ट वे टू मेक कोहेरेंट सोर्सेज इज दिस, कि आप एक सोर्स को डिवाइड कर दें दो सोर्सेज में। ठीक, अब आप डिवाइड कैसे करते हैं, इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मीन्स आप पेरेंट सोर्स के वेव फ्रंट्स को, आप जानते हैं कि पेरेंट सोर्स या प्राइमरी वेव फ्रंट सभी डायरेक्शन, उसके सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिमाइंड करिए, उसके सारे पॉइंट्स एक नए फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करते हैं एंड दे विल अगेन सेंड सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज, फॉर दैट वी कैन गेट सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, सो वी कैन डिवाइड ऑल दोज वेव फ्रंट्स। अगर हम वेव फ्रंट्स को डिवाइड कर दें एंड उनको किसी नैरो स्लिट से पास कराएं, देन इंटरफेयर कराएं, देन वी विल गेट शार्प इंटरफेरेंस पैटर्न। सो दिस फर्स्ट मेथड इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। सेकेंड मेथड, हम पोलराइजेशन में एक चीज पढ़ेंगे कि आप जानते, वन मोर थिंग आप जानते हैं कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो there is two things, electric field and magnetic field, but for the optical effect electric field is responsible. So अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग इस तरीके से मूव करती है, यानी सभी डायरेक्शंस में मिलते तो उसके कुछ पैरेलल कंपोनेंट होंगे, कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। सो अगर हम पैरेलल कंपोनेंट्स एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दें, मीन्स हम लाइट का एम्पलीट्यूड डिवाइड कर दें, लाइट के एम्पलीट्यूड को क्या डिवीजन कर दे, मीन्स पैरेलल कंपोनेंट को डिफरेंट सेपरेट कर दे एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट कर दे, देन डेफिनेटली लाइट क्या होगी, कोहेरेंट बन जाएगी, अपने आप डायरेक्शनल होगी, कोहेरेंट होगी। आफ्टर दैट अगर हम उसका सुपरपोजिशन कराते हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जो कि बहुत ही शार्प होगा। सो मैं इसको बहुत ब्रीफली नहीं, बहुत वे में नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, हायर फिजिक्स है, बट मैंने आपको ये बताया कि कोहेरेंट सोर्सेज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो आई थिंक आप इंटरफेरेंस समझ गए, इंटरफेरेंस की कंडीशन समझ गए, कोहेरेंट सोर्सेज समझ गए, कैसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये समझ गए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, सबसे पहले
इंटरफेरेंस पैटर्न यंग्स ने ऑब्जर्व किया था। सो उसके लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक्सपेरिमेंट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर डिपेंड था। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट मेथड यूज किया, वेव फ्रंट्स को डिवाइड किया, ठीक। वेव फ्रंट्स डिवीजन के बाद दो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के अदर सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को एक दूसरे पे ओवरलैप होने दिया। उनकी ओवरलैपिंग से किस तरीके से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होंगी ये हम आपको फिगर से समझाएंगे। सो वेयर एट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस पैटर्न यंग ने ऑब्जर्व किया था। फॉर दैट उन्होंने क्या किया था कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स मेथड को यूज किया था। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड्स पोलराइजेशन की नॉलेज के बाद आया, ठीक है। तो फर्स्टली डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट मेथड्स में क्या है कि हम क्या कि कोई एक आपके पास प्राइमरी सोर्स एस है, इस सोर्स की लाइट में ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इनके सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, एक फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेंगे जो भी इस पे ऊपर वेव फ्रंट्स होंगे, एंड डेफिनेटली वी विल गेट सम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। मान लिया कि एक सेकेंडरी वेव फ्रंट S1 एंड एक सेकेंडरी वेव फ्रंट S2 है। सो दीज विल अगेन एक्ट एज न्यू फ्रेश सोर्सेज, मीन्स दीज टू सोर्सेज आर ऑल्सो द इमेज ऑफ parent source and they are in same phase, they have same frequency, so definitely the condition of coherence is fulfilled here. So अगर हम देखें कि देखिए ये क्या है, वेव फ्रंट्स है ड्यू टू S1 एंड दिस वन आर द वेव फ्रंट्स ड्यू टू S2। अब इन दो सोर्सेज के वेव फ्रंट्स आपस में देखिए ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इफ दे आर ओवरलैपिंग, मैंने डॉटेड और सॉलिड लाइन से बनाया ताकि आपको क्लियर हो सके। सो इफ दे आर ओवरलैपिंग देन डेफिनेटली वी विल गेट सम ओवरलैपिंग पॉइंट्स। सो ओवरलैपिंग पॉइंट्स जितने भी आपको मिल रहे हैं उन सबको अगर आप मैच कराएं, देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेंगी, रेज मिलेंगी इनके करस्पॉन्डिंग, यानी स्क्रीन पे आपको क्या मिलेंगे, इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे, जिनमें जो पॉइंट्स आपके P0 है, P0 या P वाले पॉइंट्स है, ये ब्राइट पॉइंट्स है, मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स है। ऑब्वियसली अगर सोर्सेज क्या कोहेरेंट है then you will get distribution of maximum and minimum intensity. So these are the points of maximum intensity and these are the points of minimum intensity. We call them bright fringes and this dark fringes. Bright, dark, bright, dark. Similarly, below we will get bright, dark, bright, dark. See? These patterns, these strips, these patterns are called interference fringes. So it's very simple. Simply you have to keep in mind the Huygens principle. Huygens principle states that from primary sources there are the production of secondary sources, secondary wave fronts, and those secondary wave fronts has a common property that they have same frequency as the parent source, and definitely they have same relationship, same phase relationship. So we can use them as the coherent source and their wave fronts they will overlap, means आपको maximum intensity कम मिलेगी। जैसे अगर आप waves पे जाएं, so the waves have crest and throw. So if crest of one wave then falls on crest of another, then we will get maximum intensity, and if crest of one falls on throw of other, then we will get minimum intensity. So these are the points of maximum intensity. Dotted lines are points of maximum intensity, means here crest of one falls over crest of second, or throw of one falls over throw of second, but at these points crest of one falls over throw of second, okay, or throw of one falls over crest of second. So simple, means in this way we can easily get bright and dark fringe patterns. These are called interference pattern. So firstly Young's the scientist name, he observed that he explained the phenomena of interference by using Huygens principle. Now I think you can easily understand what is interference, how from division of wave fronts we can get interference patterns. In next class I will tell you what will be the intensity of bright and dark fringes, and what is the condition to obtain bright and dark fringes. So thank you for this.